नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको बता दें किसानों के आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन को लेकर के 7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन अब किसानों द्वारा बढ़े हुए पेट्रोल, डीजल और रसोई की जो गैस सरकार ने कीमत बढ़ाई है उसको लेकर भी विरोध में उतर आए हैं। इसी को लेकर के चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवार पहुंचे हुए थे। इन्होंने पत्रकार सम्मेलन किया। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 8 जुलाई को किसान एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सभी लोगों से अपील भी की है कि वह अपने वाहनों में रहकर ही हॉर्न बजाएं ताकि गूंगी बहरी सरकार को कुछ सुनाई दे सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो मानसून सत्र संसद का चलेगा उसमें भी किसानों द्वारा अपना विरोध दर्ज करवाया जाएगा। नए कृषि कानूनों के विरोध में 40 से ज़्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पिछली कई महीनों से देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर किसान जत्थेबंदियों ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए एक बड़ी घोषणा की है। इसके तहत संयुक्त किसान मोर्चा ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 8 जुलाई को देशव्यापी विरोध का आह्वान किया है। मंगलवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा SKM के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाली बजाने के विचार की तर्ज पर 8 मिनट तक हॉर्न बजाएंगे। किसान मोर्चा ने लोगों से सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर आने और अपने वाहन सड़क किनारे लगाने को भी कहा है। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 80 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਈ, ਪੂਰੀ ਭਖਦੀ ਗਰਮੀ ਉਹ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਝੱਖੜ ਵੀ ਝੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਹੇੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਮਗਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਉਹੀ ਅੰਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅੰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫਿਸਿਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇੰਨਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ इस अंदोलन ਨੂੰ बदनाम किया जाए, इस अंदोलन ਨੂੰ तोड़ा जाए। राज्यपाल ने कहा है कि किसान मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर रोज विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र भी दिया जाएगा। इस पत्र के जरिए वह विपक्षी सांसदों को 17 जुलाई को संसद के अंदर हर दिन किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए कहेंगे, जबकि वह विरोध में बाहर बैठेंगे। वॉकआउट करके केंद्र को
फ़ायदा ना पहुंचाएं बल्कि सत्र को चलने दें। 19 जुलाई ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਪੀਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਡੈਡਲੌਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੇ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ भाजपा वाले का करते हैं। मोहाली में अस्थायी टीचर्स यानी कच्चे टीचर्स द्वारा काफ़ी दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जो भवन है उस पर छत पर चढ़े हुए हैं पेट्रोल की बोतल लेकर। सरकार से कई दौर की बातचीत चल रही थी जो विफल हुई। इसके बाद मंगलवार को टीचर्स ने चंडीगढ़ की तरफ कूच किया कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास का घेराव करने के लिए। मोहाली पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, विफल हुई। उसके बाद चंडीगढ़ में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने टीयर गैस और आंसू गैस और साथ ही साथ लाठीचार्ज भी किया और इन टीचर्स पर काबू पाया, चंडीगढ़ की सीमा में नहीं घुसने दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का सरकारी आवास घेरने जा रहे कच्चे शिक्षक चंडीगढ़ पुलिस के साथ भिड़ गए। शिक्षकों को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन, टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस के जवान और शिक्षकों को चोटें भी आईं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने शिक्षकों को चंडीगढ़ में नहीं घुसने दिया। हालात इतने खराब हो गए कि मौके पर एसएसपी चंडीगढ़ कुलदीप सिंह चहल को खुद आना पड़ा। बता दें कि मोहाली पंजाब स्कूल शिक्षा भवन के बाहर पिछले 21 दिनों से पंजाब के अलग अलग जिलों से शिक्षक स्थायी नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। 7 से ज़्यादा शिक्षक पेट्रोल की बोतल लेकर शिक्षा भवन की छत पर चढ़कर बैठ गए हैं। मंगलवार को अध्यापकों व पंजाब सरकार के बीच बैठक तय हुई, लेकिन बाद में सरकार की ओर से बैठक रद्द कर दी गई, जिससे शिक्षक भड़क गए। भारी संख्या में शिक्षक पीएसबी भवन से चंडीगढ़ की ओर सीएम के निवास का घेराव करने के लिए पैदल ही चंडीगढ़ की ओर बढ़ने लगे। वाईपीएस चौक के पास मोहाली पुलिस ने शिक्षकों को रोकने की कोशिश की और शिक्षकों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अध्यापकों को रोकने में मोहाली पुलिस नाकाम रही। इतने में शिक्षक चंडीगढ़ बॉर्डर पर गीता भवन मंदिर के पास चंडीगढ़ पहुंच गए, जहां चंडीगढ़ पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी। चंडीगढ़ पुलिस ने शिक्षकों को चेतावनी दी कि अगर वे नहीं माने तो मजबूरी में बल प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन शिक्षकों ने एक नहीं सुनी और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शिक्षकों को उग्र होते देख पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद शिक्षकों को खदेड़ दिया गया। इसमें कई शिक्षक घायल हो गए। शिक्षकों को पुलिस अधिकारियों की ओर से समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वह नहीं माने। लाठीचार्ज के दौरान कई महिला अध्यापकों को बुरी तरह चोटें भी आई, कपड़े तक फट गए। महिला शिक्षकों ने कहा कि ये बेटियां माताओं का सम्मान हो रहा है। कई महिला शिक्षकों को गंभीर चोटें भी आईं। शिक्षकों ने कहा कि 17 साल में उन्हें मांगों के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अध्यापकों ने आरोप लगाया कि लड़कियों को गले में चूड़ियां डालकर सड़क पर घसीटा गया। शिक्षकों ने कहा कि कैप्टन सरकार हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठी है और आतंकवादियों जैसा उनके साथ व्यवहार हो रहा है। जब से धरने पर बैठे हैं 6 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है, सिर्फ आश्वासन की ही बात हो रही है। पंचकुला में एक दुखदायी समाचार सामने आया है। यहाँ पर 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म करने वाला आरोपी इस बच्ची के पड़ोस में ही रहता था। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। एक 13 साल की बच्ची के साथ
पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार करीब 10 दिन पहले बच्ची की मां की मृत्यु हो गई थी। बच्ची के पिता ड्यूटी पर चले जाते थे और वह अपनी छोटी बहन के साथ घर पर ही थी। इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, जो कि शादीशुदा है, वह बच्ची को घर पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह इसके जान से भी मार सकता है। कुछ दिन बच्ची चुप रही, जिसके बाद उसने अपने पिता को आप बीती बताई। इसके तुरंत बाद बच्ची के पिता ने महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई। जैसे ही आरोपी को पुलिस में केस दर्ज होने का पता चला तो वह घर से भाग गया। महिला थाना पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हाँ जी, ये पंचकुला के गांव का मामला है। 13 साल की लड़की है, उसके साथ गलत काम किया गया है। आरोपी शादीशुदा है और मतलब लड़की को बहला फुसला के उसके साथ गलत काम किया है। बच्ची माइनर है। तो कितने हैं आरोपी इस मामले में? एक ही आरोपी है इसमें, उसको राउंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मामला दर्ज कर लिया गया है? बिल्कुल, मामला दर्ज कर लिया गया है। चंडीगढ़ कांग्रेस ने भी पेट्रोल, डीजल और रसोई की गैस के बढ़े हुए दामों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है कि शीघ्र ही प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। हर पेट्रोल पंप पर कांग्रेस चंडीगढ़ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा ताकि सरकार को कुछ सुनाई दे और इन बढ़े हुए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को वापस लिया जा सके। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, नगर निगम में हो रहे प्राइवेटाइजेशन को लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। इस बात की घोषणा चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चावला ने किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के राज में आम वर्ग महंगाई से त्रस्त है और पेट्रोल की लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसका असर मध्यवर्गीय परिवार पर पड़ रहा है। इसको लेकर वह सभी पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करेंगे। वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई बेतहाशा कीमतें। चंडीगढ़ एक मिडिल क्लास लोगों का शहर है। यहाँ ज़्यादातर लोग 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। आज लोगों के पास अपने दफ्तर के जाने के लिए, बच्चों के स्कूल जाने के लिए, स्टूडेंट को कॉलेज में जाने के लिए पैसे नहीं बचे। अब कमर तोड़ के रख दिए महंगाई ने। रोज़ सवेरे उठो 35 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे रोज़ पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। और आज मैंने कैलकुलेट करके देखा है, पिछले 40 दिन के अंदर अंदर 9.5 रुपये लीटर तक पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। सरकार को बताना चाहिए इसका कारण क्या है। इंटरनेशनल मार्केट में इतने रेट नहीं बढ़े। ये भ्रष्टाचार ही एक कारण है शायद इसका भी, कि इस तरह बेतहाशा रेट बढ़ रहे हैं। तीसरी बात जो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान है कि हर वर्ग जो है वो सड़कों पे उतर के आंदोलन कर रहा है। चाहे पानी की समस्या पे हो, बिजली के निजीकरण के विरोध में हो, चाहे सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार हो। जगह जगह इस बात के चर्चे और एलिगेशन लग रहे हैं कि फ़लाँ डिपार्टमेंट में प्राइवेट आदमियों को, ठेके पे रखने वाले आदमियों से भी पैसे वसूले जा रहे हैं। इन बातों की तरफ मैं जनता का ध्यान लाना चाहता हूँ। 7 तारीख से लेके, कल से लेके 17 तारीख तक चंडीगढ़ कांग्रेस पूरे चंडीगढ़ में, शहर के हर कोने कोने में इन मामलों को लेकर, चाहे वो महंगाई हो, पानी की गंदे पानी की सप्लाई हो, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते हुए, इनको लेकर आंदोलन करने जा रही है। हर गांव में, हर ब्लॉक स्तर पर, हर जगह हम पेट्रोल पंपों पर जाकर इस सरकार का विरोध करेंगे। सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आपके जिस एरिया में आप देखें कि कांग्रेस के साथी उस प्रोटेस्ट के लिए काले झंडे लेके खड़े हैं, अपनी पार्टी के झंडे लेके खड़े हैं, स्लोगन वाले प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, आप उनका हौसला बढ़ाइए, उनके पास खड़े होइए, उनको जाते जाते विश करिए, ताकि वो और हिम्मत के साथ आपकी जो समस्याएं हैं वो जनता में जाके उसके लिए लड़ाई लड़ें। उन्होंने साथ ही कहा कि नगर निगम में हो रही धांधली को लेकर भी उनका प्रदर्शन जारी होगा। नगर निगम में जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं ठेकेदारी द्वारा, उनमें लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, जिसका विरोध करते हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ के लोगों से वायदा किया था कि पानी के रेट कम किए जाएंगे, लेकिन पानी के रेट कम नहीं किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ की जनता को एक बार फिर धोखा दिया है। 1 महीना पहले वादा किया था कि पानी के जो 3 गुना रेट उन्होंने बढ़ाए थे, आने वाले जो बिल हैं 31 मार्च तक वो कम रेटों के साथ आएंगे, लेकिन आज भी जो लोगों को पानी के बिल मिले हैं वो पुराने उसी 3 गुना बढ़े हुए रेटों के साथ मिल रहे हैं। जनता के साथ इतना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता।
जगह जगह लोग क्रोधित होकर सड़कों पर उतर चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। सदन को इस्तेमाल करते हैं झूठे वादों के लिए, झूठ बोलने के लिए, वही इसमें उन्होंने किया है। दूसरी जो समस्या एक और शहर में खड़ी होने वाली है, वो आज अखबारों में मैंने पढ़ा कि 1 से लेकर 30 सेक्टर की सफाई व्यवस्था किसी प्राइवेट कंपनी को देने जा रहे हैं। पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि साउदर्न सेक्टर का 45% हिस्सा एक प्राइवेट कंपनी को दिया है। चाहिए था कि उसके रिज़ल्ट देखने के बाद ही ऐसे कोई फैसले लेते। रिज़ल्ट हमारे सामने क्या आए हैं कि जो शहर चंडीगढ़ सफाई के मामले में पहले दूसरे नंबर पर आता था, उस कंपनी के गलत सफाई की व्यवस्था की वजह से 15वें 16वें नंबर तक पहुंच गया। तो क्या ये एक रिवार्ड दिया जा रहा है चंडीगढ़ की जनता को? क्या उस कंपनी को रिवार्ड देने की कोशिश की जा रही है कि उसको भी बाकी ठेका दे दिया जाए? कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अब जो सिर्फ 6 महीने इस हाउस को रह गए हैं भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम को, ये और एक भ्रष्टाचार करने का एक और प्रयास किया जा रहा है। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, चंडीगढ़ की जनता इसको बखूबी समझती है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन द्वारा एक वाहन चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। नाके के दौरान इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि नशे का आदी है, और इससे प्राप्त जानकारी के बाद कई वाहनों की भी चंडीगढ़ पुलिस ने बरामदगी की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 थाना पुलिस ने शहर में वाहनों की चोरियों की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी सेक्टर 41 निवासी सुनील उर्फ गंजा है। वहीं आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि वह नशे की लत का आदी है और वाहनों की चोरी भी इसीलिए करता था। वहीं पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करने के बाद आरोपी की निशानदही पर चोरी किए गए 10 वाहन भी बरामद किए हैं, जिनमें से 6 वाहन चंडीगढ़ से चोरी किए गए थे, जबकि अन्य 4 वाहनों का रिकॉर्ड पुलिस खंगालने में जुट गई है। बता दें कि आरोपी को पुलिस ने एक नाके के दौरान पकड़ा, जहां पुलिस ने आरोपी को नाके पर दस्तावेज चेक करने के लिए रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और आरोपी को रोककर उसके वाहन के दस्तावेज मांगे गए तो उसके पास नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि व्यक्ति वाहन चोरी करता है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने भी 2 ऐसे शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन फ्रॉड करते थे। इनको झारखंड से गिरफ्तार किया गया है और इन्होंने एक महिला डॉक्टर को अपनी फ्रॉड का शिकार बनाया था। इसके बाद शिकायत मिली और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसके बाद इनकी लोकेशन झारखंड में मिली और झारखंड से इन आरोपियों को गिरफ्तार करके लाया गया है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल ने 2 ऐसे छात्रों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक लेडी डॉक्टर को पेटीएम KYC अपडेट करने के नाम पर करीब 75,000 का चूना लगाया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान झारखंड निवासी प्रभाकर कुमार त्रिवेदी और अंकित कुमार के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हमें शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि उसके पास उसका पेटीएम बंद करवाने के लिए कोई कॉल प्राप्त हुई थी। कॉल करने वाले आदमी ने बताया कि उसका पेटीएम बंद होने वाला है। इस बात का भय दिखाकर उसे कहा गया कि आप ऑनलाइन 1 रुपये की राशि का भुगतान करो। जैसे ही शिकायतकर्ता ने 1 रुपये की राशि का भुगतान किया तो उसके खाते से करीब 75,000 रुपये की राशि निकल गई। शिकायत के उपरांत जब हमने जांच की तो जांच करने के उपरांत हमने जो ठगी गई राशि थी उसके प्रवाह की जांच की तो पाया गया कि इसका संबंध इस राशि से भिन्न भिन्न लोगों के बिजली के बिल भरे गए हैं। जब इसकी अधिक गहनता से जांच की तो उसका संबंध झारखंड से पाया गया और जांच के दौरान हमने झारखंड निवासी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए, क्या नाम है सर उनका? उनकी कोई पुरानी बैकग्राउंड क्रिमिनल सर? ये व्यक्ति बिजली के बिल वगैरह भरने का काम करते हैं। इनका तरीका वारदात ये है कि जो राशि ये ठगते हैं उसको खुद ना खर्च करके उससे भिन्न भिन्न लोगों के बिजली के बिल भर देते हैं ताकि इन तक सीधा प्रत्यक्ष रूप से ना पहुंचा जा सके। ये व्यक्ति बिजली का बिल भरने का काम करते हैं। एक का नाम अंकित है और एक का प्रभाकर। एक 21 वर्ष की आयु का है और एक 31 वर्ष का है। तो सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके शहर की खबर को जानने के लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है और उम्मीद है आपको हमारा सिटी हलचल पसंद आ रहा होगा और इसी तरह हमारा और आपका संबंध बने रहे। हमारा चैनल रोशन भव सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और अपने शहर की खबरों को देखते रहिए। और तब तक के लिए मुझे यानी अमित रोशन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।